Welcome back. I Vaishnavi Patil, and we have started with the series in which we have completed 3 chapters of English, that is 10th Bal Bharati. And in today's video, we are going to complete Joan of Arc. इसमें हम will read the chapter and slowly I'll be explaining what is there actually in this chapter. Okay, and the one who have not seen the video, the 3 videos which I have uploaded already, it's a request for them to first go and watch that video. If you find interesting, then only jump on this video. Okay, so the videos which have been uploaded are the connecting the dots. Second is the thief story, the amazing stories Ruskin Bond ne likhi hai. So what you do is first go and check that video. If you find it interesting, then only come here. Okay, it would be bilingual. I'll be teaching in Hindi at the same time English. Okay, जिसको नहीं समझ रहा है कुछ भी, it's in request for you all guys to tell me, ma'am, which language that I should select which language. Clear? So it would be easy for you. But I think if it is an English, I think listening, reading, speaking makes man perfect in English. So it's better if somebody is explaining you in English. Try to learn, try to grasp it what the teacher or what the faculty is trying to say. Okay, so instead of wasting more time on this, we'll start with Joan of Arc. Clear? Okay, we'll start with Joan of Arc. अब जॉन ऑफ आर्क है. अब ये है क्या? सी आई विल बी टेलिंग इट्स एन डायलॉग बिटवीन स्टीवर्ट, रॉब, बहुत सारे लोग हैं इसमें. ओके, विल सी वन बाय वन आफ्टरवर्ड्स. जॉन है, स्टीवर्ट्स है, ठीक है. तो ये कैरेक्टर्स है. मैं एक एक का कैरेक्टर प्रिटेंड करूँगी आपको. प्रिटेंड मीन्स आई विल ट्राई टू बी लाइक देम. Okay, I'll be reading the dialogue and then I'll be explaining what it is exactly. Okay, so let's move. First we'll read this blue box. This blue box is important when you write the summary. Okay, George Bernard Shaw, 1856 to 1950, was an Irish playwright and critic. He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman. Okay, आज you might have heard about Superman. Okay, Man and Superman 1902, Pygmalion and Saint John. He was the leading dramatist. कौन थे ये? Dramatist of his time. He was awarded the Nobel Prize in Literature. ठीक है, इन्हें क्या मिला था? Nobel Prize मिला था. क्या मिला था इन्हें? Nobel Prize. किस में मिला था? इन्हें लिटरेचर में मिला था भाई. सबसे पहले नोबेल प्राइज हमें किसको मिला था? इंडिया में. ठीक है, एंड इन विच फील्ड? ठीक है, मैं फील्ड तो बता दी थी, लिटरेचर में मिला था. नाउ टेल मी हु वाज द फर्स्ट टू अर्न दिस प्राइज. ओके, एंड व्हाट वाज द ईयर? ओके, द वॉर फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस. ठीक है, तो ये फ्रांस और इंग्लैंड है क्या? अब जाके अपना एक कॉन्टिनेंट देख लेना, पहले कॉन्टिनेंट चेक कर लेना, फिर कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है ये वो चेक कर लेना, एंड देन कम एंड सी what the chapter is trying to say. So the war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years War. John was a peasant girl. अब ये जॉन कौन है? जॉन लड़के का नाम नहीं है, बल्कि ये लड़की का नाम है. ठीक है, जॉन इज द नेम ऑफ अ गर्ल born in eastern France. ये कहाँ की है? जॉन इज फ्रॉम France. Why I'm writing this? Because these characters are confusing once you start the chapter. Okay, Eastern France से who lead the French army to several victories during the war. अब मैं बताऊँ, ये लड़की है तो कम मत मानियो. She is a girl and she is leading the army of France. Can you imagine? She is so brave, and we'll come to know what is her age. Her age is not more than 18. Her age is approximately 15 to 17. Okay, they have not clarified what is her age, but the guts, the leadership quality, the discipline that girl have is astonishing. Okay, this play begins at the time when all of northern France and some parts of the southwest were under. This plays begin the time when all of the northern France, जब northern France
और सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट क्या होता है? ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका क्या है? ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो क्या बोला है इन्होंने? साउथ वेस्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। ऑफ द साउथ वेस्ट वेर अंडर फॉरेन कंट्रोल, द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट and the Burgundian control the others. The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. ठीक है, तो उन्हें कैप्चर किया था। अब आपको देखना है हुआ क्या आगे। Sorry. The English controlled some parts and the Burgundian controlled the others. The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. The year is 1429. Captain Robert D. Baudricourt, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. ठीक है, तो क्या होता है ना कि वो जो कैप्टन रॉबर्ट था ना, ये कैप्टन रॉबर्ट था, अ मिलिट्री ऑफिसर इज सीटेड इन हिज स्टीवर्ड स्टैंडिंग फेसिंग हिम। ठीक है, तो एक दूसरे के आगे से खड़े, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर करी हूँ स्टीवर्ड, मैं हूँ स्टीवर्ड, तो स्टीवर्ड यहाँ पर खड़ा है, रॉबर्ट वहाँ पर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट रॉबर्ट। अब रॉबर्ट कौन था? कैप्टन था। ठीक है, रॉबर्ट डी बर्डिकोट, अ मिलिट्री ऑफिसर, इज सीटेड एट द टेबल। क्लियर? I told you to throw the girl out. Now I am pretending the characters. Okay, I hope you'll understand. It's a dialogue, right? But I'll be the one person who will be performing all the dialogues, whatever it is written. Clear? Robert, I told you to throw the girl out. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? तो ये रॉबर्ट बोलता है कि जो जॉन है ना, जो फ्रेंच की आर्मी लीड करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कि तुम ना इसको फेंक दो बाहर। ठीक है, क्या कहते हैं, तुम उसको फेंक दो बाहर। तो ये बोलते क्यों? तो इतनी सारी आर्मी है तुम्हारे, डजन सोल्जर, 50,000 कितने हैं, वट एवर अमाउंट ही हैज सेड ओवर हियर। आई एम नॉट talking about a perfect number, but I am saying what the Robert is trying to say is he is trying to explain the स्टीवर्ड दैट आप उस लड़की को बाहर फेंक दो, आपके पास इतने सोल्जर हैं, आप उसे बाहर क्यों नहीं फेंक दे? क्यों सारे डर रहे हो क्या उससे? ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये रॉबर्ट बोल रहा है। किसको बोल रहा है? स्टीवर्ड को। नाउ व्हाट वुड बी द स्टीवर्ड्स आंसर? स्टीवर्ड, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू, बट शी पुट्स करेज इन अस। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। तो ये क्या बोलता है? हमें उनसे डर नहीं लग रहा है, उन लड़की, वो जो जॉन है उससे डर नहीं लग रहा है, मुझे तो आपसे डर लग रहा है सर। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वो जो लड़की है उसमें इतना करेज है कि वो हमारे अंदर भी कूट कूट कर करेज भर दे। ठीक है, तो वो दैट गर्ल हैव दैट अमाउंट ऑफ करेज। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अपना स्टीवर्ड कह रहा है। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड बाय ऑफ एनीथिंग, पर आप भी डर जाओगे उससे। ठीक है, तो आप डर जाओगे ना उससे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। क्लियर? ये कौन बोल रहा है? स्टीवर्ड बोल रहा है। नेक्स्ट रॉबर्ट ग्रिमली, परहैप्स वेयर इज शी नाउ। ठीक है, ये कौन बोलता है? ये थोड़ा रॉबर्ट बोलता है। अच्छा कहाँ पर है वो? ऐसे करके बोलता है, अच्छा कहाँ पर है वो। नेक्स्ट ग्रीमली मतलब एकदम सीरियसली बोलता है ना, एकदम सीरियसली, अच्छा कहाँ पर है वो। ओके नेक्स्ट स्टीवर्ड, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर। रॉबर्ट goes to the window and asks the soldier to send the girl up. अब जब स्टीवर्ड बताता है कहाँ पर है वो, तो वो कोर्टयार्ड में अंदर रहती है, उसको ना कॉट किया रहता है। ठीक है, तो वो अपनी वहाँ पर रहती है, तो फिर वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि भेजो उस लड़की को ऊपर। अब देखते क्या होता है। The girl enters. She is well built, strong country girl of 17 to 18. मैंने कहा था ना, not more than 18. Clear? 18 years. The square's glare neither frighten her nor stops her. She speak confidently. ठीक है, जब वो आई एकदम ऐसे, एकदम स्ट्रांगली ऐसे करी थी, एकदम शी वॉज वेरी करेजियस गर्ल। ठीक है, उसके लुक से, उसके कॉन्फिडेंस से, द वे शी वॉज वॉकिंग, सबसे उतना ही पता चल रहा था कि शी इज़ डैम कॉन्फिडेंट गर्ल। ओके, शी हैव लॉट्स ऑफ करेज इन हर। ओके नेक्स्ट जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर। अब ये क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर।
अब स्क्वेयर का पर्सन ऑफ हाई रैंक, जो सबसे हाई रैंक होता है ना, उनको हम स्क्वेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये बोलती है, किसको बोल रही है, तो स्क्वेयर यहाँ पर कौन है, रॉबर्ट है, ठीक है। स्क्वेयर इज व्हाट, स्क्वेयर ओवर हियर इज व्हाट, रॉबर्ट। ओके, नेक्स्ट। तो क्या हुआ यहाँ पर वो कहती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन। अभी आते ही बोल अपना शुरू हो जाती है, रॉबर्ट को विश भी कर लिया, और जो इसको मीन्स व्हाट शी वांट शी स्टार्टेड टेलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ये बोलती है मुझे घोड़े चाहिए, मुझे कुछ आर्मर चाहिए, और बस मैं फिर चली जाऊँगी डॉफिन, ठीक है। तो ये तो पहले हैंग होता है कि लड़की मांग क्यों रही है, ओके। फिर देखते आगे क्या होता है, ओके। ओके, okay. So good morning, Captain Square. You are to give me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin. Clear? तो फिर रॉबर्ट बोलता है कि of course if somebody is trying, already इस बंदे को गुस्सा है, right? रॉबर्ट को गुस्सा है किसके लिए, जॉन के रिलेटेड, ठीक है। वो जो लड़की है उसके रिलेटेड वो आती है और सीधा बोलती है कि गुड मॉर्निंग सर, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो रॉबर्ट बोलता है, दिस गर्ल इज मैड, Why didn't you tell me so, you blockhead? तो बोलते ये लड़की पागल है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसे बोलते, ठीक है। स्टीवर्ट, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स। स्टीवर्ट इसका असिस्टेंट रहता है कि इसका यही नहीं पता चल रहा। स्टीवर्ट किसको कहता है, रॉबर्ट को कहता है कि अरे सर उसको गुस्सा मत दिलाइए, उसको जो चाहिए ना वो दे दीजिए, ओके। ये कौन कहता है, स्टीवर्ट कहता है। फिर रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की, ठीक है। जॉन, यू थिंक यू विल, स्क्वेयर, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे, यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, ये बोलता है कि मैं आपको ना आपके पापा के पास भेज दूँगा, ओके। तो बोलते क्या आप ऐसे कर सकते हो, आप नहीं कर सकते ऐसा, ओके। रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो रॉबर्ट बोलता है कि अच्छा तो फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको जो चाहिए वो मैं दे दूँगा, ओके। John, yes, square. तो बोलते yes, master. Continuous busily. A horse will cost 16 francs. तो ये अभी बोलते हैं ना, काउंटिंग करने लग जाती है कि कितने में कितना मिलेगा क्या, she count according to with the help of money, ठीक है। Yes, square. Continue. A horse will cost 16 francs. Horse कितना फ्रांस का है, 16 francs, ठीक है। It is a big amount of money, but I can save it on the armor. I don't need beautiful armor made to my measure. I can find a soldier's armor that will fit me well enough. I shall not want many soldiers. The Dauphin will give me all I need to free Orleans. ठीक है। The Dauphin क्या है, the oldest son of the king of France, the one who would become the king after his father, ठीक है। तो बोलती है डॉफिन जो है ना, द डॉफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लिन्स। तो ये बोलती है एक घोड़ा ही ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है 16 फ्रांस, बाकी सब तो आई विल मैनेज, डोंट मेक अ ब्यूटीफुल आर्मर फॉर मी, क्योंकि मैं किसी का भी पहन लूँगी, कोई सोल्जर का अगर मुझे फिट हो रहा है आई विल वेयर दैट, ओके ओके डन। नेक्स्ट, Robert, shocked, to free Orleans. John, simply, yes, square, 3 men will be enough for you to simply shocked to free Orleans. ठीक है। फिर रॉबर्ट क्या कहता है, रॉबर्ट कहता है टू फ्री ऑर्लिन्स, ठीक है। बोलता है टू फ्री ऑर्लिन्स। जॉन, सिंपली, yes, square, 3 men will be enough for you to send with me. Polly and Jack have promised to come with me. अब ये पॉली और जैक कौन रहते हैं, ये रॉबर्ट की दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ओके। सो यही पॉली और जैक कहते हैं कि वी विल कम विथ यू, ओके। नेक्स्ट, रॉबर्ट, यू मीन मॉन्शियर डी पॉलगी। मॉन्शियर क्या होता है, फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर, ठीक है।
तो बोलते हैं मिस्टर पॉली की डी पॉली की रेडी आपके साथ आने के लिए? तो जॉन बोलते हैं यस स्क्वेयर, Jack will come willingly. He is a very kind gentleman and gives me money to give to the poor. I think John Godsaves will come. And Dick the archer and their servant John of Thorncourt and Julian. There will be no trouble for you, Square. I have arranged it all. You have only to give the orders. Okay? अब क्या है कि ना, she is very brave girl. What she is directly dealing with the person that you give this all things to me, and I've already said the people who are going to come with me. Only 3 people she require, and she already done with the 3 people. She have done deal with the 3 people who are going to come with her. Okay, आगे देखते हैं. Robert to the steward, is this true about Mr. D. Polygny? फिर वो ना स्टीवर्ड को पूछता है क्या ये सच में सही है कि पॉलीगी जा रहा है? तो फिर स्टीवर्ड विल से ईगरली यस सर, एंड अबाउट मिस्टर डी मेड्स टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर. तब रॉबर्ट को स्टीवर्ड्स कहते हैं कि यस सर, इट्स ट्रू दैट दे आर गोइंग टू गो विथ हिम, गो विथ हर. Robert goes to the window and shouts into the courtyard, said Mr. D. Pollingji to me, will you? तो फिर ये होता है ना कि जब स्टीवर्ड बताता है रॉबर्ट को कि सच्ची में हाँ पॉलिन जी जा रहे हैं, तो फिर ये तो घबरा जाते हैं कि सच्ची में जा रहे हैं. सो व्हाट हैपन इज, तुरंत रॉबर्ट विंडो में जाके बोलते हैं पॉलिन जी को भेजो ऊपर. ठीक है, ऐसे बोलते हैं पॉलिन जी को ऊपर भेजो. ओके, नेक्स्ट. Yes, it's visible. John, get out and wait in the yard. John, smiling brightly at him. Right, Square. She goes out. ठीक है, तो फिर जब ये जो है ना हमारा रॉबर्ट, वो कहता है जॉन को कि बाहर जाके आप रुकिए, तो फिर जॉन एकदम अच्छे से बोलती है ओके आई विल गो आउट एंड स्टैंड. ठीक है, फिर आता है रॉबर्ट to the steward, go with her, stay within call and keep your eye on her. I shall have her here again. The steward retreat hastily. Bertrand de Poligny, a French guard, enter, salute and stand waiting. Robert, she says you, Jack and Dick have offered to go with her. What for? Do you take her crazy ideas of going to the Dauphin seriously? तो फिर बोलती है कि जैक ने भी हाँ कर दिया और आप भी हाँ कर चुके हो, तो ये सच है कि आप डफर जैसे आप डॉल्फिन जाने के लिए कह रहे हो, इज इट ट्रू? तो फिर पॉलिन जी कहते हैं अनमूव, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट? द डॉल्फिन इज इन चिनॉन. लाइक अब चिनॉन क्या है? वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस. ठीक है, वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस. रॉयल फैमिली ड्यूरिंग द 100 years वॉर द डॉल्फिन टुक रिफ्यूज इन चिनॉन. ओके, refuge in Chinon, मतलब वहाँ पर रहे थे वो. Dolphin is in Chinon, like a rat in a corner, except that he won't fight. The English will take Orleans. He will not be able to stop them. तो फिर ये जो पॉलिन जी बोलते हैं क्या ही, what is the problem? We can go over there. चिनोन is the part of Dauphin. Okay, बहुत कॉर्नर में आ जाते हैं, हम कर सकते हैं डील. ठीक है, तो रॉबर्ट कहता है he beat the English the year before last at Montargis. I was with him. पॉलिन जी कहता है but his men are coved. Coved क्या कहता है? Coved का मतलब होता है what do you mean by coved? Means frightened, डरपोक. Clear? But his men are coved and now he can't work miracles. And I tell you that nothing can save our side now but a miracle. Okay, last time वो जब जीते थे तब तो वो एक मिराकल था, बट दिस टाइम इट्स नॉट अ मिराकल. ओके, इट विल टू प्लेस, इट विल हैपन दैट ये तो हम ही जीतेंगे. क्लियर? ओके, मिराकल्स आर ऑल राइट पॉली. अब रॉबर्ट उनसे प्यार से बोलता है पॉली को, अरे मिराकल तो ठीक है भाई पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउ डेज. तब बस यही प्रॉब्लम है कि वो आजकल होते नहीं है. मिराकल तो भाई ठीक है बट वो आजकल होते नहीं है. ठीक है, तो फिर पॉली उनको क्या बोलता है? आई यूज टू थिंक आई एम नॉट सो श्योर नाउ. देयर इज समथिंग अबाउट हर. आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज अ बिट ऑफ मिराकल. एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस, लेट्स सी वॉट शी कैन डू. बोलते हैं ये हमारा लास्ट चांस है और उसी का भी देखते हैं होता क्या है.
ठीक है, विल सी व्हाट विल हैपन। रॉबर्ट वेवरिंग, यू रियली थिंक दैट? तो ये रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें सच्ची में लग रहा है वी शुड डू दिस, हमें करना चाहिए ऐसा? पॉलन टर्निंग, is there anything else left for us to think? Let's take a chance. Her words have put fire into me. तो बोलती है और कुछ चारा है तुम्हारे पास, अगर हो तो बताओ, अगर नहीं है तो मुझे बताना कि इस लड़की में उतना जुनून है, इसने हम सब में आग लगा रख दी है, ठीक है? तो आई थिंक वी शुड डू दिस, ओके? तो रॉबर्ट बोलता है व्यू, यू आर एज मैड एज शी इज, ठीक है? तो रॉबर्ट क्या बोलता है, हे भगवान तुम तो उसकी तरह ही पागल हो गए हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, let me check how much it is. Okay, अब पॉलिन जी ऑब्स्टिनेटली मतलब इन अ स्टबन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टबन इज जिद्दी। स्टबन मतलब क्या होगा, जिद्दी। क्लियर? स्टबन। पॉलिन जी, we want a few mad people now. See where the same ones have landed us. Robert, I feel like a fool. Still if you feel sure. ठीक है, तो बोलते हैं हमारे जैसे कुछ फूल लोग चाहिए हमारे साथ ताकि हम वॉर के लिए निकले। तो फिर रॉबर्ट बोलता है आर यू श्योर, मतलब तुम फिक्स हो, तुम जाने वाले हो करके? तो फिर पॉलिन जी कहता है आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मुझे तो उस लड़की को लेके जाना है, उसने जुनून भर दिया हम सब में, तो मुझे तो उस लड़की को वहाँ पर लेके जाना है, नो मैटर व्हाट हैपन्स। फिर रॉबर्ट बोलता है डू यू थिंक आई वुड टू हैव अनदर टॉक विथ हर। तो फिर ये जो पॉलिन जी को रॉबर्ट बोलता है तुझे नहीं लगता कि मैं एक और बार उस लड़की से कंसल्ट करूँ, उस लड़की से बातें करूँ? तो फिर पॉलिन जी कहता है गोइंग टू द विंडो, यस जॉन कम अप। ठीक है, तो जॉन को पॉलिन जी बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, बात कर ही लो। ठीक है, तो फिर पॉलिन जी तुरंत विंडो में जाकर जॉन चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, जॉन कम अप। ठीक है, ये बोलते हैं कि जॉन ऊपर आ जा, रॉबर्ट वांट टू टॉक विद हिम। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। जॉन आती है, फिर पॉलिन जी बोलता है ग्रेवली बी सीटेड जॉन। रॉबर्ट, व्हाट इज योर नेम? जॉन, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन, हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर कॉल मी द मेड। ठीक है, मेरा ऐसा नाम जेनी है, मुझे लोग सोल्जर मुझे जॉन बुलाते हैं, एंड यहाँ पर मैं मेड करके पुकारी जा रही हूँ। व्हाट हाउ ओल्ड आर यू? तो जॉन बोलती 17, सो दे टेल मी इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर। तो बोलती है कि शायद से 17 बोलते हैं लोग, मुझे लगता है आई एम 19। ओके, Robert, I suppose you think raising a siege is as easy as chasing a cow out a meadow. You think soldiering is anybody's job? तो बोलते हैं आपको क्या ऐसा लग रहा है कि चारा खिलाना जितना इजी है, ये भैंस को जो चारा खिलाते हो, गाय को जो चारा खिलाते हो, उतना इजी है ये सोल्जरिंग वाला जॉब? डोंट यू थिंक सो? तो फिर ये बोलती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड। ठीक है, तो बोलती है उतना हार्ड नहीं लग रहा जब भगवान तुम्हारे साथ हो। ठीक है, ग्रिमली हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? तो बोलते तुमने कभी इंग्लिश सोल्जर्स को फाइट करते हुए देखा है? कौन बोलते हैं? रॉबर्ट कह रहा है हैव यू एवर सीन द प्लंडरिंग बर्निंग टर्निंग द कंट्री साइड इन टू अ डेजर्ट, हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज? तो बोलते हैं कि तुमने कभी देखा है जब कोई किंगडम हार जाता है, जब कोई किंग हार जाता है तो वहाँ जब वॉट एवर चेंजेस आफ्टर दैट वॉर टुक प्लेस आर वेरी हिलेरियस, मतलब वो बहुत डेंजरस है। जैसे वहाँ पर बर्निंग होता है, मीन्स एवरीथिंग गेट ruined. ओके, हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ दैट प्रिंस हु इज डेविल हिमसेल्फ और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर? You do not understand, Square. Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skin, and the shortest way to save your skin is to run away. But I will teach them all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. You and Polly will live to see the day when there will be no be a single. अब कहती है कि what she says that वो कहती है कि मैं ना
बोलते ना पॉली और इसके साथ जा रही हूँ, और आज तक यही गलती हुई है कि जब भी वेन एवर आर सोल्जर्स गो दे ऑलवेज, वो खुद की स्किन कैसे बचाए, मतलब खुद को कैसे प्रोटेक्ट करे, खुद वॉर से कैसे बचे, खुद का लाइफ कैसे बचे, इसके बारे में सोचते, ना कि हम आगे वाले को कैसे मारे। ठीक है, तो जिसके जब ये सोल्जर सोचता है कि हमारा लाइफ कैसे बच सकता है, एट दैट टाइम ही इज़ नॉट अ गुड सोल्जर, बिकॉज ही इज़ नॉट फाइटिंग फॉर द कंट्री, इज़ फाइटिंग फॉर हिज स्किन। क्लियर? तो बोलते हैं मैं इनको सिखाऊंगी कैसे लड़ना है। English soldiers on the soil of France. Robert बोलता है to Polly, this may all be nonsense, Polly, but the troop might just be inspired by thought. Nothing that we say seems to put any fire into them. Even the Dauphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put it into anybody. तब ये रॉबर्ट क्या कहता है पॉली को, ये देखो मुझे तो नहीं लग रहा है, इवन डॉल्फिन जब जाओगे तुम उधर भी नहीं लगेगा। ठीक है, सो इफ़ यू आर थिंकिंग ये फायर डाल सकती है, इफ़ तुम्हारे में डाल सकती है तो किसी में भी डाल सकती है, नो डाउट इन दैट। ओके, फिर रॉबर्ट कहता है टर्निंग टू द जॉन, नाउ यू लिसन। अब ये कहता है जॉन को, अब तुम सुनो। ठीक है, लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर। कट इन बिफोर मतलब बीच में मत रोकना। ठीक है, आई हैव टाइम टू थिंक। योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर to go to Chinon under the escort of this gentleman and 3 of his friends, Radiant clasping her hands. Oh, thank you, Square. तो फिर पॉलिन जी बोलता है how is she to get into the royal presence? रॉबर्ट कहता है I don't know. How did she get into my presence? I will send her to Chinon and she can say I sent her. Then let come what may. I can do no more. Okay? तो बोलता है मैं तो जॉन को भेज रहा हूँ, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, और मैं कुछ उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ भेज दिया ऐसा ही। जॉन विद एंड द ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वेयर। रॉबर्ट टेक वॉट यू प्लीज़, बोलता है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, मैं अपने हाथ धो रहा हूँ भाई, तुम जो चाहिए। हाथ धोना मीन्स वहाँ पर हाथ धोना नहीं, ये ईडियम है। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तो बाहर हूँ। ठीक है, उसका मतलब। जॉन वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली, शी डैशेस आउट। रॉबर्ट shaking Pollinger's hand, goodbye old man, I am taking a big chance. Few other men would have done it, but as you say, there is something about her. Pollinger बोलते yes, there is something about her. Goodbye. George Bernard Shaw. ठीक है, they have shown the bravery of a young woman that is only, her age is only 18 to 19, some around 17 to 18. ठीक है, she didn't even remember her age, but people around her says that she is 17, she is 16, she is whatever. ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि only her talks, only her courage, वो ही काफ़ी है to won the war, right? अगर एक 18 साल की एक लड़की, there are so many cases around us nowadays we are facing, right? If this kind of courage a female have, no one is going to save, no one is going to face any kind of fear in future. ठीक है, so this is how we have completed the chapter. Okay, once we have done with the chapter, now it's your duty to go through the exercise. What the exercise is there, I will tell you. आपको बताना है कि सेटिंग पीरियड, रीड द एक्सट्रैक्ट, जॉन ऑफ आर्क, सेटिंग पीरियड, लोकेशन कहाँ पर है, कैसे, सीन ऑफ द गिवन प्ले, सब कैरेक्टर्स मेंशन करने, हर कॉन्फिडेंस, हर करेज जिसके बारे में लिखना है थोड़ा, एंड ईजी एज यहाँ पर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फाइंड द फॉलोइंग एंड कंपेयर टू वाई। ठीक है, जॉन ऑफ आर्क इज अ बिट ऑफ, शी इज़ अ ब्रेव। ओके, आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद then what you have to write is, make the following sentence affirmative without changing the meaning, negative I am not sure, affirmative मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर नॉट है ना, ये नॉट निकाल दो। ठीक है, अफर्मेटिव में पॉजिटिव आता है, अफर्मेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आई एम नॉट सो श्योर, सो आई एम श्योर नाउ। ठीक है, ऐसा आएगा। अगेन यू हैव टू चेंज इन दिस मैनर। डन। फिर उसके बाद क्या लिखना है, सक्सेस का वर्ब में सक्सीड होगा, एडजेक्टिव में सक्सेसफुल एंड एडवर्ब में सक्सेसफुल। इंस्पायर का क्या होगा, इंस्पायर होगा। ओके, वो लिखना है। फिर सेफ थॉट करे जिसका लिख के आना है। दिस इज हाउ वी हैव completed with the chapter. If you have any doubt related to this, you are supposed to mention down in the comment section. I will be replying you personally, don't worry about that. And if you have any doubt,
please write in the comment section. Okay, and stay tuned to the next lecture, and do watch the other 3 videos which I have uploaded for the chapters. And ये Joan of Arc भी खत्म हो गया. We'll check the next video, can check the next video which chapter I am uploading, and stay tuned till the next time. Thank you.